ਹੈਲੋ एवरीवन मैं मनप्रीत कौर ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾर्ट 2 है, ठीक है। सो पार्ट 1 ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹ मैंने ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ क्वेश्चंस, ठीक है। इस चैप्टर ਤੇ बेस्ड ਜਿਹੜੇ क्वेश्चंस ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ पार्ट 2 है। क्लियर हो गया? चलो बढ़ते हैं। सो ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਆਫਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਸਟੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 40% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏਮਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ठीक है, कि इंग्लिश ग्रामर ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਏਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ, ਇਨਫੋਰਮਲ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡਕਟਿਵ ਔਰ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੌਟ, ठीक है। ग्रामर जो है वो किमें पढ़ाई जानी चाहिए है। सो इतने ऑप्शंस दिते गए ने। ऑप्शंस आर एज अ मीन्स टू अचीव गुड कमांड ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, एज एन एंड इटसेल्फ, एज अ मीन्स टू अचीव गुड कमांड ऑफ ओनली स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल्स, या फिर डी ऑप्शन एज अ मीन्स टू अचीव गुड कमांड ऑफ राइटिंग स्किल्स ओनली। सो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ऑप्शंस अपने ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ए ऑप्शन जो है वो काफ़ी सूटेबल है। सो ए ऑप्शन जो है अपना आंसर है। क्योंकि जो ग्रामर है ग्रामर अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ, ठीक है। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ग्रामर जो है अपना ए ऑप्शन ਦੇ अकॉर्डिंग जाओगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर की रहेगा अपना ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दी ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू फंक्शनल ग्रामर, ठीक है। इन्हां दे विचों किहड़े जो भी स्टेटमेंट है किहड़ी एप्लीकेट करदी है किहदे ते फंक्शनल ग्रामर ते। सो ऑप्शंस आर अपने को जिहड़े ऑप्शंस ने वो हैगे आ रूल्स ऑफ ग्रामर हैव टू बी लर्नड फ्रॉम द सेम ऑफ देयर एस्थेटिक। इस तो बाद it does not lay down any formal rules and abstract definitions। इस तो बाद students are encouraged to learn from the sentences which may be grammatically inaccurate और या फिर grammar is a continuous involving state। सो देखो ऑप्शन ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ B ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਲੇ ਡਾਊਨ ਦ ਫਾਰਮਲ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਡਿਫੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ B ਆਪਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। functional grammar it does not lay down the formal rules and abstract definitions, ठीक है। सो ये चीज़ का ध्यान रखियो ਜਿਹੜੇ अपने फंक्शनल ग्रामर है वो एमें डिपेंड नहीं करता आ
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दी और नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर इज एसोसीएट विथ, ठीक है, ਜਿਹੜਾ भी कॉन्सेप्ट है जो भी यूनिवर्सल ग्रामर ਦੇ ਨਾਲ रिलेट करदा ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਆ, फ्राइज, स्किनर, चॉम्सी या फिर पवलव। देखा जाए तो ਜਿਹੜੇ ग्रामर का ਜਿਹੜਾ भी कॉन्सेप्ट ਸੀਗਾ ਉਹ कौन लेके आए ਸੀਗੇ। अगर आप यूनिवर्सल ग्रामर की गल करते हैं तो यूनिवर्सल ग्रामर का जोड़ा कॉन्सैप्ट सीगा वो चॉम्सी के द्वारा लेके आया गया सीगा, ठीक है। ये आपने शायद प्रीवियस क्लासेस के भी पढ़िया सीगा। BF स्किनर जोड़े हैगे ने उन्हों के बारे भी आपने पढ़िया सीगा, बट उन्होंने इसदे रिलेटेड कुछ भी नहीं सी। सो चॉम्सी जोड़े हैगे सीगा उन्हों के अकॉर्डिंग ही यूनिवर्सल ग्रामर की गल की गई सीगी। अगे देखो अगे आ जाता गा इंडक्टिव मैथड। इंडक्टिव मैथड इन टीचिंग ग्रामर फोकसिस ऑन, जिहड़ी इंडक्टिव ग्रामर है, ठीक है, उन्होंने किवें फोकस की जाती है टीचिंग दे विच। इंडक्टिव मैथड और डिडक्टिव मैथड आपाने किते सीगे क्लास दे विच, जिहदे विच मैंने एक्सप्लेन किया सी पॉइंट सीगा अपना इंडक्टिव और डिडक्टिव दा, जिहदे विच मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की सी कि भी टीचर जोड़े हैगे नेगे वो की करते हैं, एग्जाम्पल देंगे आ एंड उस तो बाद बच्चा जो है मतलब एक एक्सरसाइज देंगे आ, बच्चा जो है वो की करता ऑब्जर्व करता गा, ठीक है, कि ऑब्जर्व करता गा कि एग्जाम्पल दे विच मतलब की करैक्ट है की करैक्ट नहीं है, ठीक है, वो ऑब्जर्व करता गा एंड उस तो बाद टीचर जो है उन्होंने करैक्ट करता है, करैक्ट करन तो बाद उन्होंने होर एग्जाम्पल्स दिंदा गा ताकि वो एक्सरसाइज कर सके। सो इंडक्टिव मैथड दे विच की आ जांदा गा द टीचर टेलिंग द रूल्स फर्स्ट टू द स्टूडेंट्स एंड लेटर अप्लाइंग दैम इन डिफरेंट सिचुएशन। देखो ये एक तरह का डिडक्टिव दे विच आ जांदा गा, ठीक है, कि जिहदे विच पहला टीचर जो है स्टूडेंट्स को रूल्स दस दिंदे आ, बट ये ए वाला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन आ जाता गा द टीचर प्रेजेंट्स certain examples before the students and then frame the rules with their help। okay, mastery of the rules of the grammar या both A and C। so both A and C वाला सीन नहीं है, ना तो ये मास्टरी करवाई जाती है ना ही ये रूल्स को पहला दसिया जाता गा। पहला टीचर और बच्चों को एग्जाम्पल दिंदा आ, बच्चा उस एग्जाम्पल तो ऑब्जर्व करता है कि नाउन है कि प्रनाउन है वगैरह वगैरह एंड उस तो बाद फिर वो आंसर नू अपना आंसर दसदा आ। उस तो बाद एग्जाम्पल्स दे थ्रू ही टीचर जड़ा है रूल नू एक्सप्लेन करता है तो उन्होंने मोर एग्जाम्पल्स दिंदा आ। अगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचिंग ऑफ ग्रामर इज पर्टिकुलर यूज फॉर इंप्रूविंग। जिहड़ी ग्रामर है वो यूज़ की जाती है कि यूजफुल है किस चीज़ के लिए, टू इंप्रूविंग एक्यूरेसी, लिटरेसी, न्यूमरसी या फिर फ्लुएंसी। देखो ये जे आप गल करिए ना तो एक्यूरेसी जोड़ा है अपना आंसर ये अपने आप दे सही है, ठीक है, क्योंकि यही जो है विद्यार्थी की की करते आ प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल हो जाती है विद्यार्थी के लिए, ठीक है, ग्रामर करना। जदों तक लिटरेसी दे कोई गल नहीं हो रही है, न्यूमरेसी की भी कोई गल नहीं हो रही है, ना ही फ्लूएंट की। जो भी बच्चे की गल करते हैं ना कि टीचिंग ऑफ ग्रामर जोड़ा है ये अपने आप दे जोड़े ग्रामर है ये अपने आप दे बच्चे को इंप्रूव करता है एक्यूरेसी दे, ठीक है, ना कि न्यूमरिस दे या फिर फ्लुएंसी दे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर इन्वॉल्व्स, ठीक है, ऑप्शंस आर लर्निंग ऑफ रूल्स बाय हार्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ रूल्स बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल, या प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स बिफोर ड्राइविंग रूल्स विद द हेल्प ऑफ लर्नर्स, या फिर नेगलेक्टिंग रूल्स टू ऑल टुगेदर। जस्ट हुणी थोड़ी देर पहला अपने क्वेश्चन किया सीगा है ना, जिहदे विच अपने इंडक्टिव मैथड के बारे पढ़िया सीगा। सो ये रूल्स लर्न करने वाला भी कोई सीन नहीं हैगा, ये ना ही कोई रूल जोड़े पहला दिते जाते हैं। सो सी ऑप्शन जड़ा है सुटेबल आंसर है कि प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स बिफोर ड्राइविंग द रूल्स, ठीक है, रूल्स देने तो पहला की किते जाते हैं एग्जाम्पल्स नू दिता जाता गा। चलो अगे देखो, okay, in a class the teacher presents certain examples of grammatical items
and helps students to arrive at rules through the analysis of examples. Which method of teaching grammar? ये हुणे आपां ने कीता कि अगर टीचर जो है पहला बच्चे नूं की कर रहा है एग्जाम्पल दे रहा है, उस तो बाद बच्चा की कर रहा है एनालाइज कर रहा हैगा। सो ये किहदे विच आ जांदा गा? सिंपल इंडक्टिव मैथड दे विच। ठीक है, सो ए ऑप्शन जो है अपना करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। Next question, a teacher tell the class the rule of subject verb agreement in simple present tense and then ask the student to frame sentence in simple present tense keeping in mind those rules he or she is using। सेम चीज़ देखो इंडक्टिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੂਲਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਿਡਕਟਿਵ ਉਹਦਾ ਇੱਕਦਮ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਡਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ रूल्स करवाए जाते हैं एंड उस तो बाद की करवाए जाते हैं, एग्जाम्पल्स करवाए जाते हैं। सो जिमें इत्थे सेंटेंस दिता गया गा या जिमें इत्थे क्वेश्चन पूछा गया गा, सो क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर है वो की हो जाऊगा? डिडक्टिव मैथड। ठीक है, डिडक्टिव मैथड एक ऐसा मैथड है जिहदे विच बच्चे नूं पहला की करवाया जाता गा? रूल्स समझाए जाते नेगे। ठीक है, उस तो बाद उहदे ते एग्जाम्पल्स दिते जाते नेगे, फिर बाद दे विच उहदे होर एग्जाम्पल्स दिते जाते हैं फॉर एक्सरसाइज। आ जाओ नैक्सट क्वेश्चन दे वधदे आपां। Next question is, which one of the following is not true of the descriptive approach to grammar? ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? It considered the spoken language to be the foundation of English, या फिर it recognizes different standards of uses for formal and informal speech and writing. It assumes that a living language is in a state of flux, या फिर it treats the subject of grammar on deductive lines। देखो ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਸੋ ਡੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? रूल दसन ਲਈ रूल सिखाने ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ठीक है, मतलब रूल सिखाए जाते पर डिडक्टिव ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ नहीं ਹੁੰਦੀ। ठीक है, ਇਹ मतलब लैंग्वेज ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ यूज़ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। क्लीयर हो गया ये वाली चीज़। सो आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ रूल समझ क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर है वो है it treats the subject of grammar on deductive lines। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? which one of the following is not an attribute of functional grammar? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? It studies language facts by referring shows or to examples, या फिर it offers a systematic classification of all the language forms, या फिर it avoids the uses of technical terminology, या फिर it concentrates on the practice of correct form। ठीक है, जे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਅਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। सो इत्थे जिहड़ा अपना ऑप्शन नंबर बी है ये अपने आप दे विच की है? इट ऑफर्स अ सिस्टमैटिक क्लासीफिकेशन ऑफ ऑल लैंग्वेज फॉर्म। ठीक है, ये अपने आप दे विच सारी लैंग्वेज नूं एक सिस्टमैटिकली क्लासीफाइड कर दी है। ठीक है, सो 10th का जिहड़ा आंसर है वो की हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, which type of grammar expects children to memorize the definitions and then apply them in naming parts of speech in a given sentence? ठीक है, so options are traditional grammar, structural grammar, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव या फिर नन ऑफ दिस। अगर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਕੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ट्रेडिशनल ग्रामर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दी ओर। विच ग्रामर बिलीव्स दैट लर्नर्स should observe the samples of the language, classify then and then derive generalization। ठीक है, कि ग्रामर दे विच मतलब की चीज़ है कि जिहड़े लर्नर्स ने ਉਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ, ਸੈਂਪਲਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਰਕਚਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਥ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਸਟਰਕਚਰਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਠੀਕ, ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਰਕਚਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਟਰਕਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰਕਚਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦ ਦ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬਿਲੀਵਸ ਲਰਨਰ ਸ਼ੁੱਡ ਓਬਜ਼ਰਵ ਦ ਸੈਂਪਲਸ ਆਫ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਟਰਕਚਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਟਰਕਚਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच ग्रामर टेल्स अस। क्वेश्चन जड़ा आएगा अपना वो की है कि अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्ट मैथड। ठीक है, ग्रामर की अपने आप की दस दिया, ग्रामर अपने आप दस दिया हाउ द लैंग्वेज इज़ यूज्ड, या फिर हाउ द लैंग्वेज ऑट टू बी यूज्ड, या फिर हाउ द लैंग्वेज मस्ट बी यूज्ड, या फिर हाउ द लैंग्वेज मे बी यूज्ड। सो ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨ ਨੇਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਟ ਟੂ ਚਾਹੀਏ ਇਹਦੇ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਟ ਦੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ कि how the language is used is the correct answer। नेक्स्ट आ जाने आगे, नेक्स्ट जिहड़ा क्वेश्चन है वो अपना की है, चूज द ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू ऑफ फंक्शनल ग्रामर। इन्हां दे विचों एक मिनट ये जिहड़ा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये येलो जिहड़ा है ये ऑप्शन नंबर ए है। एक मिनट, इतने मैं ना इंक चेंज कर देनी है ज़रा। ओके, ए ऑप्शन नंबर ए है अपना। ठीक है, उस तो बाद ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, और दोनों दे कलर हो गया। चलो देखो क्वेश्चन की कहंदा गा, क्वेश्चन है अपने आप दे विच कि चूज द ऑप्शन विच इज़ नॉट ट्रू द फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर का मतलब ऑप्शन तुसी चैक चूज करना गा कि केड़ा फंक्शनल ग्रामर का नहीं है। पहला आ जाता गा इट initially presents some examples and then infers to the rules or principle। ये चीज़ तो ग्रामर दे विच है, ठीक है। इट फर्स्ट स्टेट अ डेफिनेशन और रूल्स एंड देन गिव एन एग्जाम्पल। ए दा ऑप्शन नहीं होगा, इनू आपां रख देंगे। इस तो बाद इट कंसनट्रेट ऑन प्रैक्टिस ऑफ द करैक्ट फॉर्म। नहीं, ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा ये क्योंकि ये फंक्शन दे विच ही आ जाता गा, ठीक है। लास्ट आ जाता गा इट कन्विंस ग्रामर एज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो बी ऑप्शन जिहड़ा है ये अपने आप दे विच आंसर है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रामर का कोई भी पार्ट नहीं है, ठीक है। फंक्शनल ग्रामर दे विच एवें नहीं होंदा कि पहला डेफिनेशन दिती जाए एंड उस तो बाद फंक्शनल ग्रामर दे विच पहला रूल्स करवाए सॉरी पहला एग्जाम्पल करवाया जाता है एंड उस तो बाद अपना एक रूल्स होंगे फिर एग्जाम्पल्स होंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दियो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ट्रेडिशनल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर दे विच केड़ी चीज़ जिहड़ी है वो सही नहीं है। चलो पहला आ जाता है इट कंसिडर्ड द रिटन लिटरेसी लैंग्वेज एज द फाउंडेशन ऑफ ग्रामर, या फिर इट ट्रीट्स द सब्जेक्ट ऑफ ग्रामर ऑन इंडक्टिव लाइन्स, या फिर इट रिलाइज हैविली ऑन द यूज ऑफ डेफिनेशंस एंड रूल्स, या फिर इट इज़ प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ट्रेडिशनल ग्रामर दी नहीं है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल ग्रामर की आप गल करिए ना, ट्रेडिशनल ग्रामर अपने आप दे विच इंडक्टिव वाला सीन नहीं है, इंडक्टिव मैथड तो यूज़ ही नहीं करता, ठीक है। ये हमेशा पहला रूल्स नूं दसदा है एंड उस तो बाद ही एग्जाम्पल्स करवांदा है, तो इंडक्टिव वाला पार्ट है नहीं। सो ट्रेडिशनल ग्रामर का जिहड़ा नॉट ट्रू वाला सेंटेंस है या स्टेटमेंट है वो केड़ा गा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो ये चीज़ की तुसी ध्यान रखना गा। क्वेश्चंस देखो बहुत ईजी होंदे नेगे, बस एवें है कि क्वेश्चन कुछ घुमा के दे दिता जाता गा। अज दे टाइम दे विच नॉट ट्रू दे विच ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे नेगे। द रीज़न इज़ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकिया गा, जिहदे करके की है कि बच्चा जिहड़ा है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता गा। क्वेश्चंस जिहड़े हुंदे नेगे एग्जाम तुहाडे पैडागोजी दे विच ही हुंदे आ, बट क्वेश्चन एवें पुछ लिता जाता गा घुमा के, जिहदे करके बच्चा की हो जाता गा हल्का कन्फ्यूज़ हो जाता गा। सो क्वेश्चन रीड करो, ध्यान नाल समझो, ऑप्शंस देखो एंड आंसर कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, ठीक है। जेडी जनरेटिव ग्रामर है या जिन्हों आप कह देंगे GTM, ठीक है, एक किन्ना दे द्वारा दिते गए सीगे। सो इत्थे आप पहला भी गल कर चुके हैं है ना ये बारे। सो सी ऑप्शन जड़ा है नॉम चॉम्सी इन्हां दे द्वारा ही जड़ी है कॉन्सैप्ट दिती गई सी कि ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर दी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगे अपना क्वेश्चन आ जाता गा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 17। The teaching of grammar must be according to the changes and development that makes place in school curriculum, development that takes place in language, both A and B या none of this, ठीक है। इत्थे पूछा गया गा कि टीचिंग ग्रामर किहदे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, किहदे अकॉर्डिंग चेंज की जानी चाहिए, राइट। सो इत्थे जिहड़ा अपना ऑप्शन नंबर सी है ये अपने आप दे विच की हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप दे विच स्कूल दे जिहड़ा सिलेबस हुंदा है उहदे अकॉर्डिंग ही करवाई जाती है, ठीक है। स्कूल दे जिहड़े सिलेबस हो जाती है, ठीक है। ग्रामर जिहड़ी है विद्यार्थियों दे भाषा राही भी हो जाती है, लैंग्वेज के राही भी होंदी है, प्लस उन्होंने जो भी सिलेबस है उहदे अकॉर्डिंग।
ठीक है। सो करिकुलम मतलब हो जाता गा सिलेबस। सो 17 का आंसर जोड़ा है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, बोथ लैंग्वेज एंड करिकुलम। नेक्स्ट आ जाता गा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडक्टिव और डिडक्टिव मैथड इज यूज टू टीच। ਜਿਹੜੀ इंडक्टिव और डिडक्टिव मैथड है वो यूज़ की जाती है किस चीज़ के लिए? प्रोस, ग्रामर, स्टोरी या पोइट्री। सो इहदा सीधे सीधे आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव जो है ये ग्रामर के लिए बरती जाती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। ਜਿਹੜੀ इंग्लिश ग्रामर है ये पढ़ाई जाती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए? इट हेल्प्स इन लर्निंग ऑफ स्ट्रक्चरल इंग्लिश, या फिर इट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टूवर्ड्स स्टडी ऑफ इंग्लिश, या फिर इट एंटरटेन्स द स्टूडेंट्स, या फिर इट हेल्प्स इन मार्क्स फैचिंग। सो जेड़ा ऑप्शन नंबर सी और डी है तो सीधे सीधे गया इट एनकरेज स्टूडेंट्स टूवर्ड स्टडी ऑफ इंग्लिश, ए भी नहीं आएगा। इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट हेल्प्स इन लर्निंग ऑफ स्ट्रक्चरल इंग्लिश। ठीक है, सो ए ऑप्शन जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक तरीके दे नाल इनू करवाया जाता गा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु व्यूड लैंग्वेज एज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, ये किन्हां दे द्वारा किया गया सीगा या जो भी है? मेंटल कंस्ट्रक्ट मतलब कि मैंटली तौर पर कित्थे बनती है ना, ये किन्हां दे द्वारा कही गई सीगी। सो जेडे अपने नॉम चॉम्सी ने आपां इन्हां दे बारे डिस्कशन करांगे, इन्हां दे बारे पूरी एक फुल वीडियो नूं लैके आवांगे जिहदे विच चॉम्सी दे बारे तुहानूं पूरी डिटेल दे विच दस्सिया जाऊगा। इहदा जिहड़ा आंसर है वो आंसर नंबर बी है, जिहदे विच मतलब नॉम चॉम्सी जो नेगे वो ये चीज़ समझते हैं कि जिहड़ी लैंग्वेज है वो अपने आप दे विच इंसान दे दिमाग नाल ही बनती है। ठीक है, ये कोई मानसिक इनू की कहने आगे मानसिक एक संरचना है। ठीक है, अपने आप दे विच ब्रेन का ज़्यादा यूज़ होंदा आ। सो ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, सब तो ज़्यादा जोड़े क्वेश्चनस बने नेगे या नॉम चॉम्सी के नाम के ही बने हुए नेगे। सो इन्हां दे उपर जोड़ा है आप एक फुल डिटेल वीडियो नूं करते हुए चलांगे। सो अज का जोड़ा टॉपिक सीगा अपना यही सीगा मैथड ऑफ ग्रामर टीचिंग। तो आई होप तुहानूं ये क्वेश्चनस जिहड़े ने चंगी तरह समझ आ गए होने। ठीक है, प्लस तुहानूं इहदी जिहड़ी भी PDF है वो भी तुहानूं मिलती रहेगी। एंड आई होप क्लास तुहानूं वधिया लगी होगी। सो वीडियो नूं लाइक शेयर ज़रूर करना। एंड मिलते हैं नैक्सट टॉपिक दे विच, नैक्सट क्लास दे विच। थैंक यू।